welcome to Ashchand Academy. My name is Aditya and you're watching videos on famous books by P.S. Verma and Dr. V.K. Agrawal. So इन वीडियोस में अब तक हम 3 चैप्टर्स का डिस्कशन कर चुके हैं. थर्ड चैप्टर इज ऑनगोइंग और तीसरा चैप्टर जो है उसका एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन का एक वीडियो हमने इससे पहले देखा. इस सीरीज में कनेक्टेड था पार्ट 1 ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम. नाउ वी विल टॉक अबाउट पार्ट 2 of the animal kingdom classification, where we are going to learn about remaining phylums. We have already talked about 4 out of 11 phylums in the previous video. Now 5 onwards we will see in this video. So let us continue from the point where we have left. We were at this phylum. We talked about flatworms and now we are talking about roundworms. Flatworms दिखने में फ्लैट होते हैं, यानी कि वो 2 डायमेंशनल होते हैं. जैसे किसी ने उनको प्रेस कर दिया हो, किसी ने उनको दबा दिया हो. उनके एंड एक हेड होगा, एक टेल होगी, लेकिन बॉडी पूरी फ्लैट होगी, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी. बट राउंड वॉर्म्स विल नॉट बी फ्लैट, दे विल बी ऑफ कोर्स बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक. इनमें सीलोम अभी नहीं होती है, बॉडी कैविटी नहीं होती है, और इनकी बॉडी जनरली अनसेगमेंटेड होती है. एंड दे आर लुकिंग लाइक वॉर्म, सिलेंड्रिकल होंगे. एलिमेंट्री कैनाल इनमें प्रेजेंट होती है, कंप्लीट हो जाती है एलिमेंट्री कैनाल. दैट मीन्स दे हैव माउथ एंड एनस, दे हैव सेक्सेस व्हिच आर सेपरेट. बट मेजॉरिटी ऑफ देम, सिमिलर टू प्लेटीहेल्मिंथीज, आर ऑल्सो पैरासिटिक इन नेचर. जैसे प्लेटीहेल्मिंथीज में हमने देखा कि बीमारी करने वाले वॉर्म्स थे, लिवर फ्लूक, टेप वॉर्म. ऐसे ही राउंड वॉर्म्स भी कई सारे होते हैं जो कि बीमारी करते हैं. वन सच एग्जाम्पल हियर इज अ वॉर्म which is called as Vaucheria bancrofti. So Vaucheria bancrofti is associated with a disease, unusual disease, where the legs of human being become too large, बहुत बड़े हो जाते हैं, and that is also called as elephant leg. As you can see in this picture, the elephant's leg is a disease which is caused by the kind of worms which belong to phylum Nemathelminthes or roundworms. Then we also have other type of examples. और भी बहुत सारे examples हैं, जैसे Ascaris, एक स्टोमक में कभी बोलते हैं ना, स्टोमक में कीड़े हो जाते हैं बच्चों के. So sometimes these insects are not true insects, but these are worms, and most of the times it is seen that Ascaris causes obstructions in the intestine. ये इस तरह के कुछ लंबे लंबे worms Ascaris आप यहाँ देख रहे हैं. ये worms स्टोमक में इकट्ठे हो जाते हैं और ये worms जो है कभी कभी इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं और इससे डेथ भी हो सकती है. So especially in the children, if eggs of these worms reach to their alimentary canal by touching some surfaces which are infected, or having vegetables or food which is infected with the eggs, in that cases there can be some severe infections that generally comes from feco-oral route. So at the end of this page you will find a clarity between 2 previous phylums, that is Platyhelminthes and Nemathelminthes. That means flatworms and roundworms, इनके बीच में क्या अंतर होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे. इसके बाद दिया हुआ है बड़ा ही इंटरेस्टिंग फाइलम, फाइलम नंबर 6, जो आपने अक्सर बारिश के मौसम में शायद देखा है. You would have seen earthworm, of course, every one of you. So earthworms are also like worms, but they are slightly advanced than the previous category, Nemathelminthes. Do you know that the previous category was not having a true coelom, a true body cavity? They were pseudocoelomate. But if you look at the properties of annelids, earthworm family or earthworm category, you will find that the body is triploblastic. 3 layers होती हैं, इनमें 3 layers से बनते हैं, bilaterally symmetrical होते हैं. So interesting thing about annelids is that their body is metamerically segmented. You can see in this video when earthworm is moving, you will be able to find that its body is having some components which are repeated over and over again. इसकी बॉडी में आप पार्ट्स देख रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, लाइंस देख रहे हैं, सेगमेंट्स देख रहे हैं. सो इवन इनसाइड द बॉडी, अगर ये सेगमेंट्स के बाहर के बजाय हम अंदर की बात करें तो अंदर भी इन सेगमेंट्स में बॉडी पार्ट रिपीट होते हैं, और उसी चीज़ को हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, विच इज़ ऑल्सो सीन इन हायर टेक्सोनोमिक ग्रुप्स. सो अगर आपको एनालिड्स पहचानने हैं तो इनके नाम को देखिए आप, एनालिडा, दैट मीन्स एन्यूलस बेयरिंग वॉर्म्स. ऐसे वॉर्म्स जिनमें रिंग्स होते हैं, एन्यूलस होते हैं.
सो ऐसे वॉर्म्स, अर्थवॉर्म उसमें से एक एग्जाम्पल है, एंड देयर बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड एज आई सेड। इनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, एक तरफ माउथ होता है, एक तरफ एनस होता है और पूरा फूड उसमें प्रोसेस होता है। दे हैव ट्रू सीलोम, इनके अंदर बॉडी कैविटी होती है जो कि अब तक इससे पहले के किसी भी फाइलम में ट्रू बॉडी कैविटी नहीं थी। सो दैट इज हाउ वी डिफाइन annelids, and these annelids have been further categorized। annelids को further classify भी किया जाता है on the basis of their body parts, इनमें कैसे body parts होते हैं। So they have been classified as Polychaeta। The locomotion in Polychaeta happens with the parapodia, जिसमें कई सारे सीटे यानी कि छोटे छोटे लेग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल नेरीज है, जनरली ओशंस के किनारे मिलता है ये नेरीज। देन ओलिगोकीटा, ओलिगोकीटा में क्या होता है कि बॉडी विदाउट डिस्टिंक्ट हेड एंड लैक आइज, इनमें आइज, टेंटिकल्स, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। एंड देर आर few appendages in contrast to Polychaeta which have many appendages. The Oligochaeta has few appendages. So earthworm and Eutyphus, which is much more like earthworm has a scientific name called Fertima posthuma। तो ये फर्टिमा जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, it is basically the scientific name of earthworm। So this is an example of Oligochaeta class। And then Hirudinea, ये तीसरी क्लास है। एक और तरह के ऑर्गेनिज्म आपने देखे होंगे, कुछ लोग कभी जब पानी में, पॉन्ड में या किसी मार्शी एरिया में जाते हैं तो उनकी बॉडी पर जोंक चिपक जाती है। सुना है आपने जोंक का नाम? तो आपने देखा होगा कि जोंक जो है वो बॉडी से जब चिपक जाती है तो वो ब्लड निकाल लेती है, एंड that is because it is a parasite। It sucks the blood by using specialized mouth organs। और आप देखो ब्लड सक करने के बाद वो ब्लड जो है न्यूट्रिएंट की तरह यूज करती है, फूड की तरह यूज करती है। लेकिन हमारी बॉडी से अपने आप अगर ब्लड निकल जाता है तो वो तो आप देखते हो थोड़ी देर में क्लॉट हो जाता है। अब अगर उसकी बॉडी में ब्लड उसने जो सक किया वो क्लॉट हो गया तो उसकी तो इंटेस्टाइन ही ब्लॉक हो जाएगी। So those organisms secrete a special chemical to prevent that blood from clotting। जो वो ब्लड कंज्यूम करते हैं उसको क्लॉट होने से बचाने के लिए ये ऑर्गेनिजम्स यानी कि लीच, दे सिक्रीट अ स्पेशल केमिकल कॉल्ड हिरुडिन विच इज एन एंटीकोगुलेंट। और उसी हिरुडिन के नाम पर इस क्लास का नाम है हिरुडिनेरिया। सो इतना आसान हो गया, देखो आपके लिए याद रखना लीच को हिरुडिनेरिया क्लास में क्यों रखा गया है, क्योंकि उसमें हिरुडिन नाम का एक एंटीकोगुलेंट प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है? ताकि जब वो ब्लड को न्यूट्रिएंट की तरह यूज करे तो वो क्लॉट ना हो जाए। सो दीज वर एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइलम एनालिडा। ये फाइलम एनालिडा की बात थी, यहाँ आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, एंड यू हैव ऑलरेडी सीन थ्रू वीडियोज हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली लुक लाइक इन रियल लाइफ। Then comes another very common phylum, and that's the largest phylum in terms of the number of organisms। अब तक दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम नंबर काउंट करें तो अगर हम आर्थ्रोपोड्स वाले फाइलम के ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दें तो बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं तब भी उनसे कम होंगे। एलिफेंट्स सारे इकट्ठे कर दो, सारी वेल्स, सारे एनिमल्स, सारे ह्यूमंस, कैमल्स, हॉर्सेस सब एक तरफ रख दो और सारे इंसेक्ट्स एक तरफ रख दो आप, तो इंसेक्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे। सो दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम विच इंक्लूड इंसेक्ट्स। आर्थ्रोपोडा जो है दैट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम विच इंक्लूड इंसेक्ट्स इन इट। नाउ व्हाट इज द टिपिकल मीनिंग ऑफ आर्थ्रोपोड? एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट एवरी इंसेक्ट इज एन आर्थ्रोपोड बट एवरी आर्थ्रोपोड इज नॉट एन इंसेक्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक स्पाइडर जो है आपको लगता होगा कि वो इंसेक्ट है, बट इट इज नॉट एन इंसेक्ट, इट इज आर्थ्रोपोड। इसी बात को थोड़ा सा क्लैरिटी से समझते हैं। आर्थ्रोपोड इज अ फाइलम एंड दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय externally jointed legs। See, arthros means jointed, podos means foot, and they are jointed externally। तो हमारी हड्डियां देखो कैसे अंदर से जुड़ी हुई है ना हमारी बॉडी। अगर आप हाथ को मूव करेंगे तो आसानी से जो है हाथ अलग नहीं होता है, इट डजंट डिसोसिएट। बट कभी आपने देखा है कि मॉस्किटो की लेग्स बड़ी आसानी से अलग हो जाती हैं, उसके लेग्स के टुकड़े हो जाते हैं, पीसेस हो जाते हैं, इफ इट इज किल्ड समहाउ। सो these organisms which have their appendages joined externally, they have been called as arthropods। उन्हें arthropods कहा जाता है।
एंड दे हैव सेवरल कैटेगरीज। आर्थ्रोपोड्स में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है, आर्थ्रोपोड फंजाई के साथ एक चीज़ शेयर करते हैं, एक कॉमन बायोमोलिक्यूल शेयर करते हैं। कैन यू रिकॉल दैट? जब फंजाई के बारे में बताया था तो उसका नाम लिया गया था, दैट इज काइटिन। फंजाई की सेल वॉल में भी काइटिन होता है और बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स जो हैं उनकी बॉडी में भी काइटिन होता है। कभी कभी जब इंसेक्ट पैर के नीचे आ जाते हैं ना तो क्रैकिंग साउंड आती है। दैट क्रैकिंग साउंड इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ काइटिन इन देम। सो ये तो सारी जनरल बातें थी आर्थ्रोपोड्स के बारे में।